Now, the initial part of individual differences, जो individual difference का जो initial parts होने वाला है, वो मैंने already discuss कर लिया है. How individuals are different from each other, how in their existence, in their traits, in their psychological thinking, and how we get our own identity from the other. And there are many other things that we have already discussed. There are few definitions जो मैं आप लोगों को of course भेज दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा. आप लोग चैट पे रहिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा चैट पे. लेकिन आज we are going to talk about the very individual differences on the basis of not any psychological thoughts, but rather more on a scientific and a more on a reasonable basis. There are two things that we have to understand before individual differences, before understanding the individuals. One is interdifferences and second is intra-differences. Now, if I'll ask you, what is an intra-difference? Intra-difference किसको कहते हैं? Who is going to answer? Sir, differences within its own self. नाम बोलो. within. नाम बोलो नाम. Sir, FICA. हाँ, फाइका. Yeah. What was your answer? Sir, I told intra differences means the differences which are within one's own self. Yes, very good. तो यहाँ पर दो तरह के डिफरेंसेस की हम बात करेंगे. वन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटर डिफरेंसेस, और सेकेंड इज इंट्रा डिफरेंसेस. Differences within and differences, on the level of identity और सारा कुछ जो है फिजियोलॉजी, वो सब के ऊपर ही बात करें. So, number one is physiological differences. These are the broad distinction. Physiological differences. And number two is psychological differences. Again, these are broader terms. बड़ा terms है, broader term. Now, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप लोग समझ सकते हैं. साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस मैंने कल आपको बताया, और थोड़ा बता देता हूं कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, हैबिट, इमोशनल, मोरल, सोशोलॉजिकल, ये सारे डिफरेंसेस जो आते हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस में कहीं ना कहीं गिने जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको मैंने दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन which is more physical and two which is abstract. Abstract differences are psychological in nature. Now, number one, physiological differences. Differences on the basis of color. Differences on the basis of height. Differences on the basis of obesity, या फिर पतला है,
पतली है, मतलब कहते हैं ना, those difference। और भी बहुत सारी चीज होती है, स्ट्रक्चर, वेस्ट लाइन, फिजिकल कैरेक्टर, बहुत सारी चीज होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है, these are based on physiological difference। now M differences, इसको हम मेंटल डिफरेंसेस भी कहते हैं। Oh wait, just hold on। so what is mental differences? मतलब स्टूडेंट नंबर 4 का दिमाग स्टूडेंट नंबर 9 से अलग है या 19 से अलग है? दिमाग तो सबका वही है ना। then what is this mental differences? for example, intellectual reasoning, differences in the intellectual reasoning, differences in the intellectual reasoning, differences in the understanding, differences in the level of rote memory, differences in the perception of things। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, है ना, हु आर यू, और लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, सबके हिसाब से वो जवाब सही है, लेकिन सबने अपने मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से जवाब दिया। अब यहां पर एक बात याद आ रही है, कैपेसिटी की जहां तक बात आती है, एवरीबडी इज करेक्ट इन देयर ओन प्रोस्पेक्ट। कहते हैं ना, हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं एवरीबडी एंजॉय देयर ओन प्रोस्पेक्टिव। सो देयर वाज अ चाइल्ड इन द क्लासरूम who has been asked a sum, mathematical calculation, कि बेटा 2 plus 2 mangoes plus 2 mangoes equals to how many mangoes? So he says that, sir, I don't like mango, I just hate mango। So the teacher says that, here I'm not asking about what you like or you don't, I'm just asking you 2 mangoes plus 2 mangoes equals to how many mangoes? He says 5 mangoes, but I don't like mangoes, and my mom always wants me to eat mango। But how could you say that 2 mangoes plus 2 mangoes equals to 5 mangoes? Think it again. No, sir. So he says that, okay, I'll give you 2 mangoes, and I'll give you again 2 mangoes. Now tell me how many mangoes? You have how many mangoes? Yes, sir, 5. How in the world you can say that you are having 5 mangoes if I've given you 2 mangoes plus 2 mangoes? Okay, tell me, if I'll give you 2, banana, and again I'll give you 2 banana, how many banana you have? He says 4 bananas. Then the teacher said, okay, 4 bananas, you like bananas? He said, I love bananas. Then he said, okay, again, come, let's do it again. If I'll give you 2 mangoes, and then again I'll give you 2 mangoes, how in the world how much mango you have? He says 4, he says 5 mangoes. Teacher को बहुत झुंझलाहट होती है। Now anybody of you can tell me कि कैसे 2 mangoes plus 2 mangoes is equals to 5 mangoes, but on the other hand the child says that 2 bananas plus 2 bananas is equal to 4 bananas। Who can answer this question? ऐसा क्यों हो? Why there is a discrepancy? Why there is a discrepancy? Sir, maybe because he did not liked mangoes. तो नहीं पसंद है तो एक ज्यादा बोलेगा कम बोलेगा?
सर उसके पास एक ऑलरेडी हो। एक ऑलरेडी हो, और कोई? हो सकता है सर उसे कम मतलब 4 मैंगोज उसके पास है लेकिन उसे पसंद नहीं है इसलिए वो उसे ऐड कर दे रहा है, और बनाना उसे पसंद है इसलिए वो एक्चुअल बता रहा है। अच्छा, ऐसे माइट, मैच हो गया तो हो गया काम। पता नहीं। और कोई? बॉयज में से? नहीं पता सर। नहीं पता। Now who said that कि उसके पास ऑलरेडी एक होगा इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पास 5 है? Who said this? सर शालिनी। Shalini. Yes, Shalini, you are correct. Actually, what we don't read is that, what we don't listen is that the line in between. He says that I don't like banana and my mama always wants me to eat banana. So probably his mama has already given him one mango to eat, and that is there in his bag. And that's why when the teacher says, if I'll give you 2 bananas, sorry, 2 mangoes plus 2 mangoes, how many mangoes you have? He said, sir, I have 5 mangoes. So in his perspective, he's correct. But in teacher's perspective, he's incorrect. Isn't it? He's incorrect. But for teacher ने क्या नहीं सुना? टीचर ने क्या नहीं सुना? वो ये है कि टीचर ने उसकी बात के ऊपर जहन नहीं रखा, समझने की कोशिश नहीं की. He couldn't able to understand what the child is trying to say by saying that my mama always made me to eat more and more mangoes. We have, as a teacher, they have to understand the things which are said and the things which are not said and the things which are said but not heard. You have to understand all this. With every line of a child, there is a message of his own experiences that the teacher has to understand. Anyway, let's go on. So, डिफरेंस की बात की थी मैंने, मेंटल डिफरेंस की. तो इस तरह से मेंटल डिफरेंसेस में सारी चीजें आ जाती हैं. क्या क्या? रीजनिंग, पावर ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग, concentration, attention. Differences in motor ability. ना कितने लोगों को स्कूटी चलानी आती है? Raise your hand. रेस करो. विकास, मनोरंजन, किस किस लोगों को स्कूटी नहीं चलानी है? रेज योर हैंड. Regina, बेनजीर, पिंकी, खुशबू, सादिया. बहुत लोगों को नहीं आती है. इसका मतलब क्या है? जीना छोड़ दें? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं. It is the individual differences on the basis of kinesthetic
capacity that I can't drive scooty. Or probably I tried, but I couldn't. बहुत सारे लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत लोगों की खराब होगी, और बहुत सारे लोगों की एवरेज होगी. हैंडराइटिंग भी आपकी पर्सनालिटी बताती है. Have you heard about this fact? Yes, sir. पता है? Yes, sir. तो what I want to today is that we are born with different capacities, abilities, disabilities. But we are always there with some special quality, which makes us unique, different from others. Now, differences in achieve. So आपने ये वाला पॉइंट समझा? मोटर एबिलिटी, कौन कितनी अच्छी रख सकता है, यानी हाथ का मूवमेंट को कहते हैं मोटर एबिलिटी. ठीक है, बाइक चला सकता है, कितने जल्दी कौन चलना सीखा, किसकी हैंडराइटिंग कैसी है. डिफरेंसेस इन अचीवमेंट. अचीवमेंट सर एक क्वेश्चन पूछना है. हाँ पूछिए. हैंडराइटिंग सर पर्सनालिटी को कैसे बता सकता है, उससे कैसे जज करेंगे? ये तो मैं आपको क्लास में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें मिलना मुझसे कॉलेज में. ठीक है, एक बहुत ठीक है, आपके राइटिंग स्टाइल बेसिकली डिफाइन करता है, द वे यू राइट, है ना. ए को तुमने कितना तकलीफ दिया, या ए को तुमने कितना जगह दिया, या ए को तुमने कितना बड़ा किया या छोटा किया, वो बता देगा कि आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी क्या चल रही है. समझ में आया? तो बिहेवियर भी पता चलता है. बिल्कुल. पर्सनालिटी तो हर चीज को इंक्लूड कर लेती है. So differences in achievement on the basis of different ability of the mind, the child achieves differently. Some is good in mathematics, some is good in science, some is good in English, some is good in education, some are good in psychology, some are good in reading, some are good in dance, music, songs, isn't it? And some are good in gossiping. Like I'm very good in gossiping. How many of you are good in gossiping? अच्छा. ठीक है. So how many of you are good in gossiping? Just hold on. हाँ हेलो, हाँ बोलिए. क्या चीज का टी शर्ट? क्यों नहीं तो? So, हाँ मैंने देखा नहीं, आपने चैट में कुछ कुछ कहा, तो बेटा ले जाओ. एक मिनट, आप लोग जो है अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि मैं चैट अभी नहीं देख पाऊंगा. सर पूरा क्लास को गॉसिपिंग करना पसंद है, एक्सीलेंट है. अरे वाह, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे, आगे पता नहीं. Anyways, now emotional differences. Some are very dry, some are very emotional, some are very
normal, and some are very hyper. मतलब मुझे आप लोगों के बारे में तो नहीं पता बेसिकली, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरा इंटरैक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पुराने स्टूडेंट्स, they are generally very dry. Generally, they are very dry. Or perhaps the student community is dry in their emotions. मैं गलत हूं तो बताइए, कहता है क्या कि स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ड्राई है अपने इमोशंस में? Is it true? Not at all, sir. Not at all. But what I have experienced from last 8 years, excepting 1 year, the first one, second year से मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। Anyway, हाथ आरती क्या बोलते हैं वो, क्या है वो स्टेटमेंट? हाथ आरती को कंगन, क्या यही है ना? हाथ आरती को कंगन क्या, पढ़े लिखे को कार्तिक क्या। अच्छा अच्छा, नहीं वो दूसरा वाला नहीं चलेगा, पहले वाला देखा जाएगा, है ना? हम तेल भी देखेंगे, तेल की धार भी देखेंगे, अभी तो रहना ही है आप लोग को। एनीवे, तो इमोशनल डिफरेंसेस, तो इसमें आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल जेलसी, ये भी एक इमोशन है ना? लड़कियां लड़के बात कर रहे हैं, यार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ घूम रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उधर दूसरी लड़की बात कर रही है, दूसरा लड़के बात करेंगे, वो उसके साथ गई शॉपिंग करने और वहां से देखो ये चीज खरीद के लाए, वो अपने फ्रेंड को इतना इतना सामान दिलाई, या वो अपने फ्रेंड को इतना इतना सामान दिलाया। मतलब अब जो दूसरा बंदा तो वो आंख खोल के देख रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड या इसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ घूम रहा है, उसको सामान भी दिला रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर दो बात आ जाती है। जो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, there are two types of answer. One will say that well, I have full confidence in my boyfriend's type girl, and the other will say, अरे जान दो यार, एक के चले जाने से दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है। And the third one, the person who is listening, who is absolutely jealous. There are तीन तरह की इमोशन, एक one who believes, other one who is jealous, and the other who is dry. उसी तरह से हर एक चीज में, उससे प्यार में, पापा का प्यार और मम्मी का प्यार वेरी डिफरेंट। मम्मी का बहुत एक्सप्लोसिव है ना, हमने अभी पढ़ा था ना कि एक होता है एक्टिव और एक होता है डोमिनेंट। तो मम्मी का जो होता है ना वो एक्टिव होता है, पापा का होता है डोमिनेंट। तो ये अलग अलग तरह का जो इमोशंस होता है, ये कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिफाइन करता है। पर्सनालिटी की अगर थ्योरीज आप पढ़िएगा तो उसमें ट्रेट थ्योरीज है, उसमें बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल शिबान सर के बारे में आपने पहला वर्ड यूज किया तो दूसरे ने ये कहा क्या है, वो बहुत गुस्से वाले,
This is one perspective. So this is my trait by which I am known. यानी मेरा नाम सुनते ही जो पहला वर्ड किसी के ध्यान में आए, that is my trait. And this trait is because of my emotional differences. आगे बढ़ते हैं. Differences in interest and attitude. किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है. मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे व्हाइट पसंद है, मुझे ग्रीन है, मुझे येलो है, मुझे ऐसी चप्पल पसंद है, मुझे वैसा जूता पसंद है, मुझे बिना सॉक्स के जूता पहनना पसंद है, मुझे सॉक्स पहन के जूता पहनना पसंद है, मुझे चश्मा इस कलर का पसंद है, मुझे टोपी इस कलर की पसंद है, मुझे परफ्यूम इस तरह का पसंद है. और तुम्हें जो पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. और तुम्हारे भाई को जो पसंद है वो तो और भी मुझे पसंद नहीं है. हाँ, तुम्हारी मम्मी को जो पसंद है वो थोड़ा बहुत मुझे पसंद आ जाता है, लेकिन तुम्हारे पापा की पसंद तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. लेकिन मेरी पसंद जो है वो तुम्हें भी पसंद है, तुम्हारे भाई को भी पसंद है, तुम्हारी मम्मी को भी पसंद है, तुम्हारे पापा को भी पसंद है. तो यहाँ पर मैंने दो बात बोली. एक तो इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, और इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने ये भी जाहिर किया कि मुझे क्या पसंद नहीं है. लेकिन जब इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने अपना इंटरेस्ट तुम पे, तुम्हारे भाई पे, मम्मी पे, पापा पे थोपा, तो बताओ जरा किस तरह की पर्सनैलिटी हो रही है मेरी, होगी मेरी, इमोशनली किस तरह का इंसान हो सकता हूं मैं. आपने एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई. उसमें एक रेस्टोरेंट का सीन है कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलो, से शादी करनी है. वो अगर वेटर को जो है ऐसे करके बुलाए तो उठ के आ जाना, ऐसे करके बुलाए तो शादी कर लेना. उसी तरह से मैं पूछ रहा हूं कि मैंने जब अपना इंटरेस्ट आपके ऊपर, आपके भाई और अपने ऊपर खानदान पे थोप दिया, तो मैं किस तरह का इंसान हूं, किस तरह का इमोशन है मेरे अंदर. भाई का सर अपनी बात मनवाने वाले टाइप. बात मनवाने वाले तो हैं, लेकिन क्या कहेंगे प्रॉपर वर्ड. सर डोमिनेंट मतलब भी सर. हाँ, कौन बोला. हाँ, बोलो. डोमिनेंट सर. डोमिनेंट यानी मैं जो है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का मालिक हूँ. राइट. यस सर. लेकिन इसमें भी बहुत डिफरेंसेस है. सर आगे बढ़ते हैं. Differences in attitude, belief. Some believe in magic, some believe in reality, some believe in God, some believe in the disbelief of God, some believe in hard work, and some believe in luck, faith, and kismat. तो अलग अलग बिलीव है, एटीट्यूड भी है. मेरा स्टूडेंट्स को लेकर के एक एटीट्यूड है, बिलीव है. जनरली स्टूडेंट्स आर ड्राई इन देयर इमोशन. ये मेरा एटीट्यूड. हो सकता है किसी का कुछ और हो सकता है किसी का कुछ और हो. But it does not mean that I don't love my student. Then if I love my student, how can I build such an attitude? Who will answer? अगर मुझे अपने स्टूडेंट से प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर मैं उनके बारे में इस तरह की सोच कैसे बिल्ड कर सकता हूँ if they are dry in their emotions.
पिंकी, विशाल, Yes, sir. हम्म, बोलिए। एनीवे, कौन बोलेगा? फरा, So I didn't get your question, so please repeat. I said that it is my attitude. I feel that the students are very dry in their emotion. But on the other hand, I love my student. So if I love my student, मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि they are dry towards me or the student community are dry. शीतल, बताएं। यस सर। आपने बड़े प्यार से कहा यस सर, जवाब भी उतने प्यार से दे दीजिए। सर आई थिंक बाहर से दिखाते हैं कि प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट शायद अंदर ही अंदर पसंद नहीं करते होंगे। अच्छा, that's a good answer. Ah, anybody else? सर आप मतलब सोचते हैं कि वो ड्राई है, पर मतलब कि उनसे प्यार भी करते हैं, मतलब आप उनके लिए केयर करते हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं कि तो यही तो सवाल है कि उनके लिए ऐसा सोचते क्यों हैं जब जब तो उनसे जब प्यार आपको करते रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बिकॉज वैसे। आप Yes, this is the answer. Expectation is not something that we have with our students, but standards are there which has to be met. तो शिकायत नहीं है, रियलिटी और शिकायत में फर्क होता है। मेरी दीवार जो है उसमें दाग लगा हुआ है, ये अगर मैं अपनी मम्मी को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उनको सच्चाई से अवगत करा। देखो, मेरा थोड़ा सोचने का, समझने का, आप लोगों को देखने का या दुनिया को देखने का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा अलग नजरिया ही अलग है, थोड़ा खुद को भी देखने का थोड़ा नजरिया अलग है। इस वजह से मैं इन सारी चीजों को देखता हूँ या सोचता हूँ या समझता हूँ। So some are conservative, some are rigid, some are open. I love open. And some shows that they are open, but they are conservative. कुछ लोग दिखावा करते हैं, है ना, करते हैं ना, Yes, कि हम sir. बहुत ओपन है, लेकिन एक्चुअली होते हैं कंजर्वेटिव। It's not a bad thing to be a conservative. It's never been a bad thing to be a conservative. Next आ जाता है learning differences. Again, according to the intelligence level, the learning difference does take place. तो ये वहां पर हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। इस वाले चीज का मैं आप लोग को नोट्स जो है, मेरा जो आईसीटी टीम है
उसके थ्रू आप लोग को भिजवा दूंगा, ठीक है। और आई होप यू हैव ट्राई टू से बताना चाह, बोलना चाह, दिखाना चाह, समझाना चाह, कन्वे करना चाह, तो आप लोग को समझ में आया हो। क्लास बहुत आसान थी। यस सर, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा था ये। अच्छा नहीं, आसान। कोई चीज अच्छा या खराब, अच्छी या खराब नहीं होती, ये देखने का नजरिया होता है, ठीक है। ये आसान थी, ये बात सही है, क्योंकि इट वाज मोर observable facts, visual facts, and the real fact. Now, if you have any questions, then please आप हमसे पूछ सकते हैं। म्यूट कीजिए और पूछिए। रोल नंबर 4 कौन है? यस सर, रोल नंबर 4 क्या संगीता मुर्मू। क्या नाम है? संगीता मुर्मू। हाँ, प्लीज बताइए।